Hey guys, hi, good morning. Sorry, afternoon. We already had a good morning, right? So, good afternoon, everyone. I hope all of you are doing really good and really well. If that is so, could you quickly give me a 5 in the chat box so that we know all is good, all is well, and we are good to begin? Yes, Beta ji. Can I quickly get a 5? Yes, yes, everyone. Where is everyone? Did I send them? Okay. I'm sorry. Sorry. Class just started. My bad. Okay. Okay. Why? Okay. Too many windows are open. Um, guys, I can see Anish here, Nidesh here. Hi, beta. Okay. So as you already know, आपको already पता है that we follow the plan 7:30 AM was how do organisms reproduce lecture 2 आज था, right? We'll start with plant reproduction tomorrow. 3:30 we are doing PYQ. आज PYQ हरियाणा का है. And 8 p.m. we are doing NEET 2024. What we'll try to do today is finish fungi and enter plantae. ठीक है? Okay, so this is what we are going to try to do today. So let's begin. You already know आप सारी चीजें ट्रैकर से डाउनलोड कर सकते हो. Good evening Nidesh, and you can have the telegram Sona Singh Unacademy जहाँ पे आप कोई भी डाउट्स अगर पूछना है तो पूछ सकते हो. ठीक है. Bugs bounty क्या है? तो Bugs bounty is if you find inappropriate content, do let us know. How do you let us know? By filling in the form that's down in the description. And as soon as we know, we'll take care of this, right? Obviously, don't misuse it. We'll be rewarding you for doing that. Is West Bengal NTSE easy? Not so much. Okay. Now, what is plus? What is iconic? Plus क्या है? Iconic क्या है? तो बेटा, they are subscriptions. Subscriptions बोले तो with the help of these, you can get the best of an academy. You have top educators giving you classes, regular doubt clearing sessions, पूरा का पूरा syllabus, study material, practice tests, and live test series as well. Now, आपको करना क्या है? You have to first choose your respective category, जो कि this would be IIT JEE NEET Foundation. क्योंकि इसमें बोर्ड भी हो जाएगा और आपका फाउंडेशन भी हो जाता है. चूज करो बड़ा महीना, उससे पर मंथ प्राइस घट जाएगी. एंड फाइनली यू हैव टू एंड द कोड SONA05 which gets you an extra 10% discount. ठीक है. I'm good, Rishabh. Thank you so much. How are you? I hope this evening slash afternoon is going to be good for you as well. What is iconic? प्लस के सारे गुण हैं इसमें. उसके अलावा you get a personal mentor, live doubt solving, weekly reports and parent connect sessions as well. ठीक है. तरीका वही है, category, महीना and the code. Okay, so Ajit is here as well and Mridul as well. Okay, looks like a lot of you have already geared up for the mentee, and meanwhile I'm doing this, make sure that you share the link for the mentee with all of your friends. ठीक है. Now if you're not sure about Unacademy Plus or Iconic, so go ahead for special classes are free, they are real time. You can ask questions, you can take live polls, you can try leaderboards as well. Now how do you know which educator you want to have a class of? You should get a trial, right? So this special is like a trial. uh, go study with the teachers, different teachers, and obviously uh, you'll find the one that is that works out for you, and then we can go. Link in the mentee, I'll show you it. How much will session will go, what is the code? I'll show you the code as soon as I'm finished with this. Now the final thing is Unacademy Prodigy kya hai? We have come up with a 20 lakh college grant scholarship. ये 23 जनवरी से शुरू होगा. And enrollment is free. You need just the code that is mine and or any other teachers. Sona05 is mine. आपको क्या करना है? अपना रिस्पेक्टिव ग्रेड, रिस्पेक्टिव टेस्ट डेट एंड जो भी प्रेफरेबल टाइम स्लॉट है उसको चूज कीजिए. राइट नाउ हर एक टेस्ट में देयर आर रिवॉर्ड्स फॉर वेरियस रैंक होल्डर्स एंड देयर आर स्कॉलरशिप स्लैब्स. एंड 29th जनवरी और 13 फरवरी को यू हैव 20 लाख का कॉलेज ग्रांट. So what is your view on biology of MP? But not very hard, not very hard. Okay, for existing subscribers, if you are looking to extend the plus or iconic subscription,
For 12 months or above, you get an extra 3 and 6 महीना का सब्सक्रिप्शन ऑन प्लस एंड आइकॉनिक रिस्पेक्टिवली. सो चेक देम आउट. अभी नए नए कोर्सेज लॉन्च हुए थे 3rd को ही. एक था आपका प्रीमियम फॉर क्लास 10 एंड गोल्डन फॉर क्लास 9. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू चेक देम आउट एज वेल. ठीक है. ओके. Any logistics that you want to ask me, or should I jump to the Menti now? Beta ji, any logistical questions that you have for me? No. Yes. No. No, sir. No questions. All is good, sir. The world is a happy place. प्लस लेने के बाद सारे बैच खुल जाता है. प्लस लेने के बाद आपकी जिसका भी आपने प्लस लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने फाउंडेशन का प्लस लिया है, तो फाउंडेशन के सारे बैच का आपको एक्सेस मिल जाएगा. अगर आपने CBSE 9-10 लिया है तो CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. IIT JEE लिया है तो IIT JEE का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स. आपकी कैटेगरी का जो आपने प्लस लिया है उसका सब्सक्रिप्शन लेते ही you get the access for all of that. Okay, cool. Guys, quickly sign up. The code is there. मैं एक बार कोड यहाँ चैट में भी लिख रहा हूँ. 31761307. अरे मैंने ई लिख दिया 3 की जगह. सेलेक्ट 3, कॉपी. सो गाइज, इन बीच में अगर कोई आके कोड पूछता है तो प्लीज उनको हेल्प कर देना. So when you will you do the leftover PYQs of previous sessions? It's slightly diabolical right now, beta. That's why I'm not committing you anything. Wait for the appropriate time. Abhi 15 tak ka you already have the everything in the tracker itself. Wait for like a couple of days, you'll know. ठीक है? Okay. Nidesh is already here. Chalo, I'm pressing the enter and we are about to start. Okay. 51 questions target है. This was not my intent. 51 आ ही गया. So okay. 16-17 से start किया हमने. If the saliva is lacking in salivary amylase, which of the following processes will not take place? एकदम simple, एकदम direct question. Can you do a collective session with all the remaining though? There's an if and a but associated, Nidesh. Wait, right now थोड़ा सा have patience. Wait, you'll know about it. ठीक है? Okay. So yes, आपका salivary amylase has salivary amylase, tyline has amylase will break down amylose, आपका starch का component into simple sugars. So that is exactly what will not happen. Correct answer 2 था, right? Okay, 31761307. कनिष्क, guys, एक अगर कोई chat पूछे ना, अगर कोई कोड पूछे तो make sure that one of you at least just type it in the chat box. ठीक है? चलो. Question number 2. Yeah. Why do I have only 6 people? I was expecting a 60 strength today. It has been found that people living in very high mountains, they have more RBCs. Why? क्या reason है? जो बहुत ऊपर रहते हैं उनमें RBCs ज़्यादा है. They breathe more quickly, they have cold climate, they have low air pressure, which speeds up the blood circulation so that more RBCs are needed. तो कई सारे 2 पॉइंट्स तो रिलेटेड ही हैं, सी और थर्ड और फोर्थ. सो एक वो भी कंफ्यूजन था. वेरी गुड. अब दिस इज कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन. प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत करना. Acclimatization is a temporary response of your body to a change. For example, जो अभी presented था, when you go to Himalaya, कैलाश, मनाली, wherever at a height, वहाँ पे pressure कम जाता है. Pressure कम गया तो उसके वजह से the concentration of gases there is low, right? So that is why your body detects it, and that is why it has a higher hemoglobin content. Now this is an example of acclimatization. This is temporary. The moment you come back to, let's say आप दिल्ली से गए थे, जैसे आप वापस आओगे, your body is normal. What is an example of an adaptation? Adaptation
हो सकता है जो लोग ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन इज मॉडिफाइड टू हैव अ हायर एफिनिटी फॉर आपका ऑक्सीजन. That is something that is embedded right into their genes, right? That is an adaptation. An adaptation almost always comes from genes. 3 and 4 are almost same. No beta. Fourth जो है वो हार्ट का सर्कुलेशन के रेट के बारे में बोल रहा था. थर्ड प्रेशर को रिलेट कर रहा था. दैट इज वाई थर्ड वाज करेक्ट. ठीक है. तो एक्लिमेटाइजेशन और अडेप्टेशन में फर्क है. दोनों को कंफ्यूज मत करना. खाने के बाद ठंड लगती है ना, मुझे भी अभी ठंड लग रही है. Okay, come on, let's move forward. बहुत ही आसान क्वेश्चन. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट कॉम्पोजिशन आपको बताना है. मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ओके, आई एम रियली फीलिंग कोल्ड बिकॉज आई जस्ट एट फूड. Come on, guys. And guys, make sure that you like the session. Sir, can't the temporary effect be made permanent? A temporary effect cannot be made permanent, but similar permanent effects might arise. For example, they might have some genetic predisposition जिससे कि उनका RBC amount बढ़ा हुआ हो. ऐसा possible है बेटा, right? But temporary will not change into permanent, but a similar permanent effect could be already witnessed. ठीक है. Now, this question was about reflex arc. Reflex arc are path followed by the reflex actions. So obviously you'll have the receptor, you have a sensory nerve, you have an interneuron, that and if or not always found, you have a motor neuron, and then the effector. Simple. So why questions are straight, it takes much time. So why your questions are straight, it takes so much time. Okay. Guys, these questions are directly picked from NTSE. I know कुछ questions कुछ ज़्यादा ही simple है, कुछ questions कुछ ज़्यादा ही नॉट कुछ ज्यादा ही. इसमें तो सारे क्वेश्चंस या तो इजी हैं या तो मीडियम है ना. तो ये स्ट्रेट अवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है. मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने बस क्वेश्चन को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया. Okay, so we have Nidesh, Mridul, Bhishma. Oh wow, nice name. Alien, you can't see me, but I can see you. Fan, okay, hi beta. Kathy and Ambriel. Okay, great. Code for Menti, Saloni, that's the code beta G. 31761307. ठीक है? Okay, great. Okay, moving ahead. जिसे भी ये सेशन okay, question number 4 out of 20. No comments. The offsprings formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations. और ये हमने बहुत डिटेल में किया है, राइट. वी हैव डन दिस इन अ लॉट मोर डिटेल आज सुबह, है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कब पढ़ रहे थे? आज सुबह पढ़ रहे थे, राइट. और हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमने क्वांटिफाई भी किया, 2 to the power 23 to the power 2 into power 4, है ना. तो वी गेव ourselves 3 different reasons for sexual reproduction to work more variations, right. Sexual reproduction is lengthy, genetic material comes from 2 parents, genetic material comes from 2 parents of same species, genetic material comes from many parents. Okay, तो यही होता है पूरा नहीं पढ़ने की वजह से. आप लोगों में से आधे बच्चों ने सेकंड में देखा 2 डिफरेंट पेरेंट्स, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, ये नहीं देखा कि आगे डिफरेंट स्पीशीज लिखा हुआ है. ओ गाइस, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड के लिए क्लास डिस्कनेक्ट होगी. मैं भूल गया था कि मैंने अपने रूम के नेटवर्क का चेंज नहीं किया है, which is not good. I need to change it to the room ka network. Okay, good. Now the connection is back. Okay, so very simply the answer was of the same species, but हमने आज सुबह पढ़ा कि because we have 23 homologous sets, we can possibly create 2 to the power 23 different combinations, right? And because we are involving the fertilization of gametes from the 2 different parents, that means you'll have 2 to the power 23 whole to the power 2, that is 2 to the power 46 different combinations. And because अगर हर एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रॉसिंग ओवर भी मान लेते हैं, तो 2 to the power 23
to the power 2 multiplied by 4. That is the amount, that is the number of possible combinations that you can make, है ना। ये सब लॉजिक आज सुबह की क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो सुबह की क्लास देख लो, ठीक है। चलो, moving on to the next question. The sex of a male child is determined by which of the following: length of mother's pregnancy, length of time between ovulation and copulation, presence of an X chromosome. Which of the following? Sex of a male child, है ना, sex of a male child. ये आप 8th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो मतलब बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ही नहीं है गलत होने की। Am I correct or am I correct? है ना। वो guys, how is the presence of an X chromosome the determining factor? दोनों में होगा X chromosome, right? अच्छा, एक बात बताओ, I want to ask something from all of you in the chat box. There are 2 X chromosomes in females, there's 1 X chromosome in male. Are there some proteins which would be just double in amount as compared to the same in males? XX is female बेटा जी, XX is female, XY is male, है ना। तो क्या ऐसा है कि फीमेल में X 2 हैं तो डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहा है? इज दैट द ट्रूथ? क्या ये सही है? आई हैव ऑब्जेक्शन बेटा, ऑब्जेक्शन स्टेम्स फ्रॉम आपने पूरा नहीं पढ़ा। XY is male, XX is female, राइट? सो गाइस कम ऑन टेल मी, क्या XX होने की वजह से फीमेल में there would be twice the amount of those proteins? Come on, what do you think? Bye, I'm going. Ajit, if only that the dialogue could help you with something. Right? Okay, guys, come on, focus. The question was, I don't think so. Absolutely correct, Nitesh. Uh, so you might have heard about a particular term called Barr body. William Barr ने इसकी discovery की थी. So what happens is that females, they have 2 X chromosomes, but only one remains active. The other one becomes inactive and they are referred to as Barr body. They don't have any influence per se, right? So इसीलिए ऐसा मत समझना कि फीमेल के पास अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो उनके पास तो उनकी तो लॉटरी लग गई, उनके पास तो डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, नहीं, दैट कुड हार्म दी several processes. According to evolutionary theory, the formation of a new species is generally due to now you have to just choose, right? आपको बस choose करना है. Oh, so it's just a fancy name for it? Yeah, sort of. Just a fancy name for the inactivated X chromosome because William Barr discovered it, right? Okay. So, evolutionary theory, new species, क्या है? Formation of a new species is accumulation of variations over time. So, for example, if I get a new variation tomorrow, that doesn't mean I'm a new species, right? So, you know, sickle cell anemia, it's widely there in African population because they have a lot of you know, plasmodium spreading evil mosquitoes anopheles there, and so they have a lot of sickle cell anemia because it provides sort of advantage to them कि उनमें plasmodium ज़्यादा घर नहीं कर पाता. That, so that's one variation we are talking about. Having just a one variation doesn't make those people completely different species of about themselves, right? उससे वो नए species नहीं बनते, right? But अगर धीरे धीरे ऐसे variations इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा? आपकी स्पीशीज इतनी डिफरेंट बन जाएगी कि नाउ दे कांट मेट, एंड दैट एग्जैक्टली that accumulation creates a different species out of it. So that is why the correct answer is 2. Rishabh, okay, कोई बात नहीं बेटा, we still have a lot of questions. There's 51 questions in all, और अभी तक हमने कितने कर लिए ये तो देखना पड़ेगा. सर, how many questions? सर, आप ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, एट टीवी में आता है?
सर आप उस ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो जिसका एड टीवी में आता है? अनअकैडमी का एड टीवी में आता है? आई डोंट थिंक सो। अनअकैडमी का टीवी में कब से आने लगा? नहीं, अभी नहीं आता। मतलब नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, एंड आई एम वेरी श्योर मेरा नहीं आएगा। ओके, 6 क्वेश्चंस डन। 7th क्वेश्चन, स्पीसिएशन हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, pH of a sample, really? Whoa, that's highly improvable. If that would be the case, things would be very different now. Okay. The pH of a sample of water collected from a river is found to be 3.5 to 4.5. The most likely reason for this is the waste being discharged into the river from dash. So pH जो है 3.5 to 4.5, तो you know acidic pH है. So acidic pH किस वजह से हो रहा होगा? बेटा दिस इज केमिस्ट्री बट बायो में पूछ लिया, क्या करें? तो कार बैटरी में आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड्स यूज होते हैं, तो दैट इज व्हाई यू विल से कि नियर बाय कार बैटरी लगी होगी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वाओ, टुडे वी आर डूइंग फास्ट है ना, कल से हम जल्दी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस, 51 है, कम क्वेश्चन से आज लेकर आया मैं, तो आज कोशिश करेंगे खत्म करने का। आज कुछ भी हो जाए ये मेंटी रात को कैरी ऑन नहीं होगा। आज हमें किसी भी तरह प्लांटी में घुसना है फंजाई खत्म करके, और फंजाई खत्म करने का मतलब काइट्रिडोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा माइकोटा, इनके बारे में ब्रीफ पढ़ना है, और उसके बाद प्लांट की कंप्लीट स्टोरी करनी है। थैलोफाइटा का डिटेल नहीं, बट प्लांट की कंप्लीट स्टोरी आज करनी है रात में। इसलिए सब पहले मैंने बता दिया, खाना खाकर आना। कोई अगर बीच में बोला सर खाना खाने जाना है, तो फिर मैं रास्ते में यहाँ पे बैठ के खाना खाऊंगा। ओके, मैन्योर विल हैव large quantity of organic matter, but they will not have large quantity of mineral content, right? मिनरल कंटेंट उनके पास ज्यादा नहीं होने वाला, दैट इज वाई। ओके, बट 7 लोगों ने गलत क्यों किया भाई? कभी काल क्या होता है ना, मुझे शक हो जाता है कि मैंने कहीं आंसर गलत तो मार्क नहीं कर दिया। सर रॉन्ग बोल, अभी पढ़ लेते हैं। Manure contains large quantities of organic matter and small quantities of nutrients. A is correct. Increases water holding capacity. Okay, it helps in draining out excess water from the clay. Okay, A and B are correct. Correct answer should be 2. Sorry, my bad. My bad. Totally my bad. Change हो जाएगा. Change हो जाएगा बेटा. चलो, ठीक है? Okay, it's changed now. So the third one is wrong also, right? बेटा वो water. Wait, what was the third point again? Is wrong also, right? Okay, third one, it was like it increases the water holding capacity of the clay soil. Acha, that's why. देखो, clay soil already has a lot of water holding capacity, right? वहीं पे problem खत्म हो गया। अच्छा, drains water, sorry, drains water था, हाँ, drains water, no, it will not do that. In all capacity, both clay soils, they have very good water holding capacity. सेकेंडली यस, ऑर्गेनिक कंटेंट होने की वजह से ये भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा सा इंक्रीज ही कर देता है, राइट? बट कोई ये ड्रेन नहीं कर सकता, मतलब इट विल डाइल्यूट सम, आई कैन से दैट, बट नॉट एग्जैक्टली ड्रेन करेगा, राइट? या इट कैन हेल्प सैंडी सॉइल, बट देयर इज नो पर्टिकुलर यूसेज फॉर क्लेई सॉइल, उसके लिए उसका कोई पर्टिकुलर यूसेज नहीं है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज गो बैक टू मेंटी। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड बाय, प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाना, श्रिंकेज हो जाना, श्रिंक ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो, संग्राम, दैट्स द कोड बेटा। असलाम एंड संग्राम, बोथ ऑफ यू बेटा, कोड आपके सामने है, मैंने अभी मैसेज में भी डाल दिया है, ठीक है? ओके, easy, yes. The question was, what was the question? Guys, what was the question? What was the question? मैं भूल गया. I'm becoming so much of bhula. Yeah, what the question was exactly? But most of you have got it correct, but मैं भूल गया. Lengthy to read but easy. यार question क्या था?
प्लाज्मोलाइसिस, ओके या। सो हाइपरटोनिक मीडियम में जैसे ही आप एक प्लांट सेल डालोगे, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म रिट्रैक्ट्स, है ना, वो खिंचा जाता है क्योंकि पानी का बाहर लॉस हो रहा है, राइट। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन 2 होगा। सर आज मेरा दिमाग अंडमान निकोबार गया है। कोई बात नहीं बेटा, वापस आ जाएगा, ठंड रखो। व्हाट इज इन इम्बिबिशन? बेटा इम्बिबिशन इज अ सरफेस एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। कुछ surfaces they can adsorb, not absorb, they can adsorb मतलब lose forces के कारण the water molecules would sort of cling to a particular surface और उसके बाद osmosis हो जाता है अंदर, ठीक है। तो imbibition वहां से आया, ठीक है। imbibition is one of the ways जिससे आपका plants के अंदर water आता है, that is one of the ways, but अंदर नहीं, surface पे आ रहा है। surface से अंदर कैसे आएगा? that is osmosis। टिश्यू फाउंड इन एरिया ऑफ रेगुलर वेयर एंड टेयर, कौन सा टिश्यू है जो आपको रेगुलर वेयर एंड टेयर के एरिया में मिलेगा? सर हरियाणा में बायो टफ है क्या? बेटा इट इज वन ऑफ द हार्ड लेवल स्टेट्स, बट उतना टफ नहीं, मतलब इट्स गुड, इट्स टफ बट इट्स गुड। महाराष्ट्र से थोड़ा कम बट ठीक ठाक, ठीक है। यस, एरियाज ऑफ टफनेस, दैट मीन्स आर द माउथ, द एनस, द स्किन, इन सभी जगहों पे आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है। स्ट्रेटिफाइड तो होगा ही होगा, स्क्वामस होगा, थिन प्लेट लाइक सेल्स, बिकॉज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हैज गॉट वेरी हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी। इनके नीचे आपके स्टेम सेल्स होंगे जो कंटिन्यूसली डिवाइड करके नए नए आपको सेल्स देते रहेंगे, राइट। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर वाज दैट। सर कोड स्वयं लेट नॉट गुड, okay, 31761307, I'll type the same in the chat box। चलो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रूट प्रेशर? बेटा जब अंदर पानी आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, दैट जनरेट्स अ प्रेशर। जब सेल्स के अंदर पानी ज्यादा है, इट विल जनरेट अ प्रेशर, दैट इज सिंपली रूट प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू पुश द वाटर थ्रू द जाइलम। there is a continuous flow, right? बस यही है, there's nothing fancy about it, it's just there's a regular inflow of water जिसके कारण एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है नीचे से वाटर कॉलम को ऊपर धकेलने के लिए, बस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 40 क्वेश्चंस टू गो। How sunlight increases in winters? Because there is no transpiration happening in winters, beta. Rishabh, not no transpiration, less transpiration happening in winter. Winter में पहले transpiration हो रहा था, सॉरी समर्स में, इसीलिए बहुत पानी लॉस्ट भी हो रहा था, तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। मान लो एक सिनेमा हॉल है, एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरा तरफ आपने गेट बंद कर रखा है, तो अंदर लोगों की भीड़ ज्यादा होगी। अगर दूसरा तरफ आपने खोला रखा है तो एक तरफ से लोग घुसेंगे, एक तरफ से लोग निकल जाएंगे, तो भीड़ नहीं होगी ना। सेम आपका आइडियोलॉजी लगाना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सेम आइडियोलॉजी आपको लगाना है। तो समर्स के समय में ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है बाय इनकमिंग वाटर, सो इट बैलेंसेस आउट थोड़ा थोड़ा। विंटर्स में नो सच बैलेंसिंग एक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे फाइलोजेनी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइलोजेनी इज डिटरमिन्ड बाय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सर कौन कोड पिन कर दीजिए? बेटा मैं पिन नहीं कर सकता, वो एडमिन राइट्स नहीं है ना बेटा, टीचर्स के पास एडमिन राइट्स नहीं होते। Imbibition is a part of root pressure? No, imbibition is just a way to concentrate water near the root surface. जेम्स वेब टेलीस्कोप, हाँ मैंने भी पढ़ा, वो चला गया फाइनली स्पेस में, है ना, पूरा खुल गया, अब सारे मिरर्स एक्टिव हो गए। Duck-billed platypus and echidna are which of the following? Duck-billed platypus and echidna. Come on, guys. Are they reptiles? Are they eutherians? Are they egg-laying or young one producing animal? Come on.
Oviparous, yes, they are oviparous. They give rise to uh, eggs, and these eggs, in over the course of time, they will be fertilized, and the new organism comes from. Good marks from Maharashtra out of 200. I have not much idea about that. I don't have much idea about that, Pulkit. Ki what's the good marks? Okay, so the leaderboard is changing very in a very good way. A lot of people are close to each other. So okay, I can expect better things. Question number 13. Please go back to Menti. Following is a mismatch: leprosy, AIDS, malaria, and elephantiasis. Which of the following is a mismatch? Absolutely correct. AIDS, acute immunodeficiency syndrome, is caused by the HIV, human immunodeficiency virus, right? It's not bacteria. Leprae is caused by mycobacterium. Leprosy is caused by Mycobacterium leprae. I don't remember the other diseases, but that is why it's wrong. ठीक है? Mycobacterium leprae, LEPRAE. ठीक है? चलो, question number 14. Ozone hole over Antarctica spreads during dash. अब यहाँ पे be focused, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझ ऐड करना, because हमें लगता है easy होगा, but हमेशा नहीं होता. Sorry guys, I don't know, I am feeling tired. I just, maybe this is a side effect of eating. Come on. ओजोन होल बनना अंटार्कटिका के ऊपर किस समय बढ़ जाता है? Okay, most of you chose summer, but it happens during the spring. Spring or late spring में the temperatures are the most favorable for doing that, right? For breaking down ozone. And sir, you need a break. I'm counting 20, 12, 13, 14, 15. 4 days a week. Ah, I need a break. I know. I need a break. There's a big break coming. Why, sir? Did you overeat today? No, I didn't overeat. क्वेश्चन नंबर 15. वहां पर ऑलरेडी टिक लगा था बेटा. अच्छा, एक चीज, डोंट गो बाय द आंसर दैट्स मार्क्ड इन हियर, बिकॉज ये बच्चों के पेपर्स हैं. हो सकता है सही हो सकता है गलत हो. ठीक है? जस्ट बिकॉज इसमें मार्क्ड है, ये मत समझ लेना कोई आंसर सही है. अच्छा, आपने एसी से कंपेयर किया? नहीं 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 नहीं, एसी से कंपेयर नहीं करना था बेटा. एसी से सीएफसी को आपको देखो, ये मत सोचो कि एसी है तो सीएफसी रिलीज होगा, नहीं. यहाँ पे एसी वाला फंडा नहीं लगाना था. यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन वाला फंडा लगाना था. स्प्रिंग के समय जो आपका सनलाइट है, दैट इज बेस्ट फॉर द डिग्रेडेशन टू हैपन. दैट इज वाई यहाँ पे एसी का फंडा नहीं लगाना था. ठीक है? देखो, आप सीएफसी अगर रिलीज भी करोगे ना, तो उसको वहां पर पहुंचने में बहुत समय लगता है. इतना आसान से जल्दी नहीं पहुंचेगा. ठीक है? Now, which of the following is made up of only one macromolecule? Options क्या थे? Options क्या थे भाई? मैंने वो नहीं देखा. Come on, why is my pen not working? हाँ. Okay, virus, plasmid, nucleosome and ribosome. तो plasmid is only DNA, है ना? Plasmid is just DNA. There's no association of nuclei or something. So the correct answer was plasmid. वायरस को देखेंगे तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ हो सकता है. न्यूक्लियोसोम में डीएनए और प्रोटीन होगा, और राइबोसोम में कहोगे तो आरएनए प्लस प्रोटीन होगा. तो दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर वाज 2. चलो, ओके, leaderboards are changing. Great. Acha. Okay, Nidesh still leading the leaderboard. Then we have Kanishk, Ritika, Mridul. Alien. Better. This is Ajit, right? Ajit or Rishabh? Who is this? I think this is Ajit. Hai. Keshav, NTSE aspirant. Beta, your name would help. Duke, Pulkit. Okay, Sona sir fan. Beta, please अपना नाम लिख दो. It just better, right? And this is ha. Ha. Okay, how many times ha? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times ha. Okay, I'll remember that.
Come on guys, come on. Question number 16. Go back to Menti please. सभी लोग वापस Menti पे जाइए. Okay, switching to the questions. Anish is that. Okay, beta. Now, you have to find out energy yield kilocalorie per gram is best represented by kilocalorie per gram. Remember, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते समय हमने बोला था सबसे ज्यादा एनर्जी आपको लिपिड देता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं. और एटीपी तो बिल्कुल भी नहीं. एटीपी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल बस. राइट. ग्लूकोज 686 किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है, 10 गुना ज्यादा. राइट, ऑलमोस्ट. और आपका हो गया लिपिड्स. लिपिड्स दे कैरी मोर देन दैट डिपेंडिंग अपॉन विच लिपिड. राइट, तो सबसे पहले लिपिड, फिर कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में लगाना एटीपी. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 17. Go back to Menti, please. Go back to Menti, guys. Okay, we have 16 people. Why don't these 16 people come in the night? Sir, एक doubt. हाँ जी बेटा जी, पूछिए. The subunits of ribosomes in the cells of nephron are. B थोड़ा सा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, बट अब आ गया तो क्या करें, है ना. चलो. ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, बट आ गया. आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी. पहले अंदर पहले इसको अटेम्प्ट कर लो आप लोग, फिर आई विल एक्सप्लेन कि ये क्वेश्चन गलत क्यों है. ओके, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, कैन समवन आंसर मी व्हाई इज दिस क्वेश्चन रॉन्ग. व्हाट इज एस हियर? एस स्टैंड्स फॉर स्वेदबर्ग यूनिट. द साइंटिस्ट SVEDBERG, स्वेदबर्ग. इन्होंने ही आपके आरएनए को अलग अलग टाइप्स के बताया था बेस्ड ऑन कि जब आप आरएनए को सेंट्रीफ्यूज करोगे या सेल का सोल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो जो जितना हल्का होगा, है ना, और जो जितना भारी होगा वो अपनी वेट के हिसाब से अलग अलग टाइम पे आपका सेटल करेगा. राइट, इट्स अ मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल. राइट. नाउ प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम्स. राइट, एंड यूकैरियोट्स हैव 80s राइबोसोम्स. लेकिन एक्सेप्शन है. यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, बिकॉज दे कम फ्रॉम बैक्टीरियल ओरिजिन्स, उसमें 70s है. राइट, तो यहाँ पे 70s के टाइप्स क्या होते हैं? 50s और 30s. आई नो आप बोलोगे सर 70s है तो फिर 50-30 कैसे हुआ? 50-20 होना चाहिए, बट ऐसे ही होता है, एडिटिव नहीं होता वो. और 80s के फर्दर सब टाइप्स होते हैं 60s एंड 40s. राइट, तो आपने आंसर चूज किया 60s एंड 40s क्योंकि यूकैरियोट्स में आपका 80s पाया जाता है. लेकिन एक पंगा ये है कि यूकैरियोट्स नेफ्रॉन के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s भी पाया जाता है. इसका मतलब 50s, 30s, 60s, 40s सारे के सारे पाए जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि ये क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन क्या करें, है ना. ओके, क्लियर है कि डू यू वांट मी टू री एक्सप्लेन दैट? क्या वो क्लियर है? सर ऑल्सो देयर एग्जिस्ट 5, 23, 6. यस, दैट इज करेक्ट. 5, 5.8 ये सब भी होगा. छोटे छोटे जितना तोड़ते जाओगे उतना मिलते जाएगा. बेटा, इज दैट क्लियर? एस वाला फंडा, या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर माय कमेंट. सर डू यू लाइक माय नेम? ओके, I sort of believe that you should not, matlab, you should not be fans, like I really idolize APJ sir, APJ Abdul Kalam sir, but I won't say I'm a fan. मतलब I'm not his fan. I respect him a lot, right? So मतलब ये जो है ना fan का concept थोड़ा मतलब मतलब ठीक है, ये समझ गए मतलब, right? Don't be a fan, right? I mean, don't be a fan. uh, if you idolize or respect someone, that's okay, that's good, that's being humble, right? But don't be a fan. मतलब sort of, I don't know how to explain this. हाँ मतलब, yeah, fan is like you're a fan of Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan. That's fan, that's being a fan. You like his work, sort of, I guess. Yeah, sort of.
Be tube light. Yeah, Mridul says be tube light. Be obedient. No, I mean be expressive. Don't be obedient. Be expressive. Okay, go ahead. Question number 18 of 51. Exactly, we should not be a fan. We should be an AC, right, sir? No, AC is a CFC hota hai. We should not be a CFC emitter, right? AC will emit CFCs. We don't want ozone holes, huh? Involuntary muscles are not found in. ओके वन इम्पोर्टेंट थिंग आप ये हमेशा सोच लेते हो कि वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो स्केलेटल मसल्स है वहां पे तो इनवॉलंटरी कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है. नो, डोंट फॉरगेट अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस, राइट? ओके, टंग आइरिस. सो टंग इज वॉलंटरी, यू कैन कंट्रोल इट, है ना? यू कैन कंट्रोल दैट. Sir, we should be and spread knowledge and love. Yes, that's a good. Sir, there are ACS which are non-CFCs nowadays. Beta, we can't say there's non-C. They are not non-CFCs. Uh, the um, the ozone depleting power has gone down by tens and tens and tens. मतलब, thanks to technology and innovation, nowadays we have रेफ्रिजरेंट्स जो मतलब बहुत ही कम डिप्लीशन करवा पाएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाट इन दोज, कौन सा प्रोटोकॉल था? क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल था शायद, राइट? क्योटो वाज फॉर दैट. ओके, सो इन दोज प्रोटोकॉल्स द की वाज कि हम धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, नया मेथड्स को एक्सेप्ट करेंगे, और धीरे धीरे उनको आप पुरानी चीजों को छोड़ोगे. तो हर एक देश के ऊपर एक टाइम लिमिट बांधा गया था कि ग्रुप वन कंट्रीज आपको इतने समय में इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपाउंड्स को यूज करना बंद कर देना है, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड दिस वाज मॉन्ट्रियल वाज one of the theories which has one of the treaties which has actually worked in the past. And we should really give ourselves a pat in the back that yes, it has worked. And current estimates की माने तो we have already controlled ozone depleting substances का emission to a level कि we estimate कि अगले 40-50 सालों में the depletion would be balanced. ठीक है? अभी जो रिलीज हो गया, इट इज गोइंग टू स्टे इन द स्ट्रेटोस्फेयर, कॉज द डैमेज, बट अगले 40-50 सालों में वी आर ऑन अ ट्रेंड दैट हीलिंग विल स्टार्ट. ठीक है? सर, हाउ मच विल दिस सेशन गो? 4:45 or 50? We'll try to complete all the 51 questions, but we will not be able to go past 4:45, 50 because I have another class at 5 o'clock. ठीक है? ओके सर, आइरिस नहीं हो पाएगा. नहीं बेटा, आइरिस is what controls the amount of light that's going inside your eyes, right? तो जैसे आप ब्राइट रूम में जाओगे ना, अचानक से आपका आइरिस रिलैक्स करता है आपका प्यूपिल को छोटा करने के लिए, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए. सो इट्स इनवॉलेंटरी, इट्स नॉट वॉलेंटरी. ठीक है? So did you see the pig's heart transplant into human? Yes, Mridul. It's all over the news, right? And abhi tak the patient is stable, so that's a big achievement. But let's see, है ना? Abhi still, I guess some days would be critical, but let's see. मतलब, it's a big feat. If this goes into process, it's a big feat. Let's see क्या होता है आगे. Different microorganisms taking part in nitrogen cycle are rhizobium in roots, ammonifying bacteria, nitrifying bacteria, denitrifying bacteria. Which of them strictly worked under anaerobic condition? Anaerobic condition में कौन काम करता है? Come on, guys. And guys, those who did not attend the special class yesterday, please ensure कि आप special class attend कर लो, because वहाँ पे genetics चल रहा है, right? And this is going to be only till 15th as of now, right? So yes, only the last process, denitrification, cannot occur in the aerobic condition. But let me be very clear, कभी काल आपका nitrogen fixation भी is being easily poisoned by आपका oxygen, right? So this question comes with a lot of ifs and buts. Okay.
Sir didn't read the question properly. अरे 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 अरे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. We still have chances. 31 more questions to go. Sir, I exited Minty. What is the code? एक second, Rishabh. I'll just paste it in the chat box. ये रहा. Rishabh, paste it in the chat box, बेटा. Paste it in the chat box. Okay. The following pictures were drawn by a student to show different stages of binary fission. आपको बस उसको label करना है. Okay. So the first thing will be third. Cell is going to elongate. फिर nucleus divide होगा तो karyokinesis followed by cytokinesis. I can't see. एक second बेटा. ये देखो 31761307. ऋषभ ऋषभ एक सेकेंड अरे अरे ये क्या हो रहा है यार. I just pasted it again. एक बार चेक कर. Sir, your way of teaching was just amazing. Oh, thank you so much, Mridul. Thank you so much. Okay, Rishabh. चलो. Moving to the next diagrams. Sorry, questions. Question number 21. Yay. 30 more questions to go. Oh my God, it's 417. ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा. Which of the following is not strictly considered a part of the neuron? Neuron का हिस्सा कौन नहीं है? Remember, neuron is a single cell. इसमें से कौन है which is not the part of the cell which neuron is? Come on, guys. Okay, so we know that आपका myelin sheath is actually a neuroglial cell. There are different kinds of neuroglial cells, and I taught you that myelin sheath is generally formed by Schwann cell and oligodendrocytes, both of which are neuroglial cells. वो आपका हिस्सा नहीं है of the neuron, right? They are cells which wrap themselves around the axon. Now, अब आप बोलोगे सर माइलिन शीथ तो हमने पढ़ा है किसी बुक में, वो तो प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है. नो, इट्स अ सेल. व्हाट हैपेंस इज जब माइलिन शीथ आप सॉरी जब ये श्वान सेल आपका एक्सॉन के अराउंड रैप कर रहा होता है, एक टूथपेस्ट के रैपर की तरह सारा साइटोप्लाज्म सबसे बाहर वाली लेयर में जमा हो जाता है और अंदर बच जाता है बस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग. इसीलिए किसी बुक्स में ओवर सिंप्लीफाई करके गलती से बता देते हैं कि भाई वो फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन का बना. नो, इट्स एक्चुअली द मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल इटसेल्फ. तो दैट इज द माइलिन शीथ. और न्यूरीलेम्मा क्या हुआ फिर? न्यूरीलेम्मा इज द आउटर मोस्ट जोन जहां पे श्वान सेल का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन सब कुछ होगा. ठीक है सर. टंग में इनवॉलेंट्री मसल्स होता है ना स्केलेटल? हाँ, यस, यू कैन कंट्रोल इट, राइट, यू कैन कंट्रोल इट. उसमें वॉलेंटरी लिखा था, राइट, कि जहां पे वॉलेंटरी. वेट, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इनवॉलेंटरी जहां पे होता है नहीं होता, क्या क्वेश्चन था? हार्ट पे इनवॉलेंटरी सॉरी वॉलेंटरी नहीं होगा. Did we mark that one like wrong or something? Okay. अच्छा, इनवॉलेंट्री नहीं होगा ना टंग में? इनवॉलेंट्री आई डोंट नो. रिफ्लेक्स एक्शंस उसको अफेक्ट तो कर सकते हैं बट इनवॉलेंट्री नहीं होना चाहिए शायद. नॉट इनवॉलेंट्री वाज द क्वेश्चन. ओके, वी हैव टू री अटेम्प्ट दैट. पता नहीं किधर गया वो. टंग इज वॉलेंट्री, यस, इट विल बी वॉलेंट्री. चलो, but I'm not sure about the reflex actions. ठीक है. Which of the following statements about the autotrophs is incorrect? याद रखना आपको incorrect ढूंढना है. You have to find out the incorrect ones. First trophic level है convert water and carbon dioxide. They store carbohydrate. They synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water. Right? They convert water and CO2 into carbohydrate only in the absence of light. No.
ऑटोट्रॉफ्स दो तरीके के होते हैं, कीमोट्रोफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हाउएवर, दे आर द वंस हु यूज द केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स जो आपके सराउंडिंग में पाए जाते हैं। हाँ हाँ सलमान बेटा बताओ। कुछ ज्यादा लेट हो गई क्या? हाँ जी बेटा जी, दैट इज अ कोड, एक बार देख लेना, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन हो गए शायद। यस, 23rd। वी आर अप्राउड अप्रोचिंग हाफ टाइम, हम हाफ टाइम अप्रोच कर रहे हैं। करेक्ट द पाथ ऑफ ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। पाथ ऑफ ब्लड को करेक्ट करो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में। बेटा आज अगर बच गया ना, मतलब शायद लग रहा है बच जाएगा, तो अगर बच जाता है तो टेंशन मत लेना। जितने क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम अगला जो भी एनटीएससी पीवाईक्यू होगा ना, जिस भी स्टेट का होगा उसके साथ कर लेंगे, तो थोड़ा सा मिक्स और मैच हो जाएगा, ठीक है। सर आई एम फ्रॉम, बेटा मुझे समझ में नहीं आया, टी त्रल्ग, एम आई प्रोनाउंसिंग दैट करेक्टली बेटा? एंड आई डोंट नो वेयर इज दैट। OTP, beta Salman, I'm not getting exactly what you want to say. Okay, now यहाँ पे you have to, थोड़ा सा complicated logic था। Atria to ventricle, right? Ventricle से pulmonary artery, pulmonary artery से lungs ने oxygenate करके vein को दिया, that is why। तो थोड़ा सा complicated है, but sort of that। NTSE date, बेटा if I knew NTSE date, I would be NCERT का डायरेक्टर और द डायरेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, विच आई एम नॉट, है ना। आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, इट्स इन कश्मीर, वाओ, ओके, नाइस नाइस। ओके, त्राल, ओके, ग्रेट, कूल बेटा। बेटा वी हैव कंप्लीट लाइक 23 क्वेश्चंस। ट्राई टू स्टे इन द क्लास एंड थोड़ा सा रिविजन होते रहेगा। एमपी का कब होगा बेटा? एग्जैक्टली नहीं पता। सर फ्रॉम त्रिपुरा, आई विल बी गिविंग IOQJS नेक्स्ट ईयर, योर कोर्स हेल्प मी। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड? कौन सा ऐसा आयन है जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है? कम ऑन, आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो जब हम थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई दो तरह के थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी बनाता है। वी से T3 एंड T4। T3 has 3 iodine atoms and T4 has 4, that is why the name is T3 and T4। T3 ज्यादा पावरफुल होता है, बट आपका बॉडी ज्यादा T4 बनाना है, और लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू T3, राइट। तो बॉडी इज लाइक सुपर स्मार्ट। Okay, too much easy, yeah, right? Okay, leaderboards are changing, that's good। So why is iodine important for the exact thyroxine beta? That is how the structure of thyroxine is, and thyroxine being a hormone, क्योंकि वो एक हार्मोन है, आपकी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, that is why iodine itself is important। Iodine deficiency causes Gautre। Iodine deficiency could cause Gautre। Other hypothyroid disorders could also cause Gautre। Hyperthyroid disorders could also cause Gautre। देखो क्या है ना कि थोड़ा सा ना मिसलीडिंग है, आपको ऐसा लगा बताया जाता है कि आयोडीन कम है तो गॉट्रे, नहीं। व्हाट इज गॉट्रे? स्वेलिंग, स्वेलिंग है ना। क्यों स्वेलिंग हो रहा है? यू हैव नेवर बीन टॉट दिस एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। स्वेलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपको याद है हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी TSH देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार आके थायराइड को बोल रहा है कि भाई हार्मोन बना, हार्मोन बना, हार्मोन बना। अब देखो, थायरोक्सिन जो है पिट्यूटरी को जाके बोलता है कि TSH मत दो, आई एम टू मच। सो एक्चुअली में जब सब कुछ सही काम कर रहा है तो TSH आके पिट्यूटरी को बोलेगा, सॉरी TSH आके थायराइड को बोलेगा, थायराइड जो है जो थायरोक्सिन बनाता है वो नेगेटिव फीडबैक जाता है। लेकिन फॉर सम रीजन यू आर नॉट मेकिंग थायरोक्सिन। वन ऑफ द रीजन कुड बी आयोडीन नहीं खा रहे, आयोडीन डेफिशिएंसी है। तो आपका थायरोक्सिन अब पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा, तो पिट्यूटरी बार बार वहां से TSH को भेजते जा रहा है, और TSH इज गिविंग दी सिग्नल कि थायराइड व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग थायरोक्सिन।
राइट? तो इसीलिए आपका ग्लैंड स्वेल हो जाता है। एंड द सेम थिंग कुड हैपन इन हाइपरथायरॉयड डिसऑर्डर्स। हाइपरथायरॉयड डिसऑर्डर्स नहीं कह सकते उसको एग्जैक्टली, बट समटाइम्स आपका जो पिट्यूटरी है वहां से ज्यादा टीएसएच सिक्रीट होता है, सम ट्यूमरोजेनिक कॉजेस। अब ज्यादा टीएसएच रिलीज होगा तो ज्यादा थायराइड को स्टिमुलेशन मिलेगा कि थायरोक्सिन बनाओ, थायरोक्सिन बनाओ, थायरोक्सिन बनाओ। तो इवन हाइपरथायरॉयड डिसऑर्डर्स में जब आयोडीन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है तब भी आपका गॉट्रे पॉसिबल है। बट आई नो ट्रेडिशनली आपको बताया जाता है कि भाई आयोडीन नहीं है इसीलिए गॉट्रे हो रहा है, बट द ट्रूथ इज देयर कुड बी अदर रीजंस फॉर द गॉट्रे। ठीक है सर, व्हाट इज योर नेम? बेटा माय नेम इज सोना, सोना सिंह। ठीक है, थायरोक्सिन का काम क्या है बेटा? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके सेल्स को बेसल मेटाबॉलिज्म करने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है कि भाई मेटाबॉलिज्म करो, बर्न एनर्जी, राइट, यूज convert glycogen into glucose, make it more available. Okay, given food chain 100 joule, 100 joules of energy. Sir, I want to give KVY next year, but I'll take maths. Please tips दीजिए. All the best. बेटा try to be in touch with all the subjects and बीच बीच में prepare करते रहो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ते रहो, थोड़ा ज़्यादा, right? Slow and steady, but it's fast and consistent always, you know. So मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो एंड इट विल वर्क आउट, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। प्लांट्स एंड स्नेक, प्लांट्स के साथ कितना और स्नेक के साथ कितना आपको उल्टे आना है ना, क्योंकि किसके पास 100 जूल है भाई? फ्रॉग के पास 100 जूल है, राइट? तो प्लांट के पास कितना होगा? 1000, 10,000, और स्नेक के पास कितना होगा? 10, तो 10,000 एंड 10। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। सर गलत है आंसर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत है क्या? अरे अरे रॉन्ग पोल दिया क्या मैंने? सॉरी गाइस, आजकल थोड़ा ज़्यादा ही कहाँ गया भाई? अरे अरे अरे, मैंने गलत क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। हम्म, ओ, नहीं सही तो है, 10,000 एंड 10, सेकेंड आंसर सही तो है, सेकेंड ही है ना इसका आंसर, करेक्ट तो है। देखो 100 एनर्जीज अवेलेबल, अच्छा सॉरी, फ्रॉग इज 100, तो एनर्जी विथ प्लांट्स एंड एनर्जी विथ स्नेक, ठीक तो है। व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा जी? सही है ना, सेकेंड, कूल, ओके। ओके स्वयं कूल है। वो हीट को बायो में, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो। सो हाफ मेंटी इज डन, 26 क्वेश्चंस डन, लेट्स सी हम कितना और कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स, इसका आंसर मैंने गलती से दिखा दिया था, बट ईमानदारी से अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो डैश ओनली सिमिलैरिटीज ओनली वेरिएशंस, बोथ सिमिलैरिटीज बोथ वेरिएशंस। ठीक है चलो, कम ऑन। Okay, very good. They show both similarities and variations. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें पंगा नहीं था। हाँ, Rajiv, so basically स्वयं confused because food chain was wrong. It should have been frog then snake. तो वैसा ही तो था, फ्रॉग के बाद स्नेक ही तो था बेटा, राइट? देखो प्लांट, प्लांट को खाया कीड़े ने, कीड़े को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग के बाद स्नेक ने, राइट? कुछ 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 उल्टा बोल दिया है मैं, आई थिंक वही था ना। चलो, नहीं था सर, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, एनटीएससी है यार, छोड़ो। सब मल्टीप्लिकेशन में एरर, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, तो इसमें क्या था आपका, पेन क्यों हो रहा है आपको पता है? पेन इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन। तो एकदम से, और देखो देखो ये ऐसे क्वेश्चंस गलत करना सही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन गलत बिल्कुल मत करो बेटा, बिकॉज दिस इज मतलब इजी टाइप है ना, ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है।
फूड चेन किस चैप्टर में है? आर एनवायरमेंट ग्रेड 10, अजीत, आवर एनवायरमेंट ग्रेड 10, ठीक है। ओके, वी हैव अनदर लीडर बोर्ड अवेलेबल विद अस गाइस। प्लीज जब भी ये क्विज दोबारा हो, साइन अप विद द सेम नेम, ठीक है, सो दैट अगले बार वी कैन कैरी ऑन, अगर वैसा अलाउड होता भी होगा। अदरवाइज सिंपली आई विल रीसेट द आंसर कीज, तो नॉट अ बिग डील एज वेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आउट ऑफ 51। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ गुड फूड चेन? एक अच्छा फूड चेन कौन है? अच्छा और सच्चा। मुझे तो समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में अच्छा फूड चेन क्या होता है। अच्छा, समझ गया मैं, अब समझा मैंने, हाँ ठीक है, ओके ओके, डन डन डन। How many more questions? Beta, it's a matter of time. So we'll be live till 4:50, 20 more minutes or 18 more minutes. We'll try to cover as many questions as possible. There's no limit. उसके बाद we'll fold the class as per that. ठीक है? We'll fold the class as per that. Okay? चलो. Difference between systolic and diastolic blood pressure is known as dash. कृपया करके मार्क्ड आंसर्स पे मत जाना। मार्क्ड आंसर्स सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? इट्स देयर इज नो गारंटी दैट द मार्क्ड आंसर्स कुड बी करेक्ट, राइट? ऐसे इजी क्वेश्चंस हरियाणा के मैथ्स में भी आए। यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना था एक्चुअली में, राइट? इवन इफ यू डिड नॉट नो द आंसर। Okay, now you already know what is blood pressure. You already know what is stroke volume, the amount of blood that is pumped in one stroke, that is stroke volume. ठीक है? What is cardiac output? Amount of blood pumped in 1 minute, that is cardiac output. Stroke volume into number of heartbeat. What is heartbeat? How many times the heart is beating in 1 minute? That is 72, right? The stroke volume is 70 ml. Heartbeat is 72. 70 into 72, कार्डियक आउटपुट आ गया 5040 ml, राइट? अब समझ में आया ये क्वेश्चन कितना इजी था? कितने लोगों ने, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन दो लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया था? दे आर द करेक्ट वंस। रॉन्ग पोल नहीं है, पोल सही है, पोल सही है। कितने लोगों ने ऑप्शन 3 चूज किया है? अच्छा, सी द पोल रिजल्ट। ओके, स्वयं इज करेक्ट। और कौन था सही? सही सही, और कौन है? हु एल्स चोज ऑप्शन 3? मुझे जानना है, आई एम क्यूरियस। देखो, कभी काल हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है? पहले से मार्क किया था इसलिए कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि भ्रम में मत पड़ो। ये किसी बच्चे का पेपर का स्क्रीनशॉट है ना? तो पता नहीं उसने क्या मार्क किया है ना, पता नहीं वो कितना पढ़ के गया। ठीक है, चलो, ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 30, 21 क्वेश्चंस रिमेनिंग। हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ लिविंग स्पीशीज आर इन डेंजर? इसमें भी टिक किया हुआ है, सोच के मार्क करना। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, राइट? ओके, percentage of living species are in danger. Okay, so yes, the correct answer is 10%. The correct answer is 10%, not 30%. Let me change this. The correct answer is 10%. Guys, एक थोड़ा सा नॉर्मल चीज, यू नो समटाइम्स आई नो यू पीपल आर किडिंग, आप लोग मजाक कर रहे हो यहाँ पे, यू डोंट मीन एनीथिंग, राइट? ऋषभ जैसे, तो समटाइम्स आई करेक्ट यू, राइट, कि नहीं ऐसे नहीं बोलते। द इंटायर रीजन आई करेक्ट यू दैट आई नो कि आप अभी मजाक कर रहे हो, पता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि कभी ऐसे जगह पे वो निकल जाएगा जहां पे इट कुड रियली डू अ हार्म। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, यहाँ पे इट्स अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, आई थिंक मेनी ऑफ पीपल नाउ यू पीपल नो ईच अदर, तो यहाँ पे यू डोंट मीन इट लाइक दैट, राइट? यू मीन इट इन अ वेरी फ्रेंडली वे, आई नो दैट, राइट? बट क्या होता है ना कि मान लो यू आर इन अ स्कूल, या मतलब नॉट इन योर स्कूल, कहीं बाहर गए हैं, और
द इंटायर रीजन आई करेक्ट यू पीपल इज कि कभी गलती से वो वहां ना निकल जाए जहां पे नहीं निकलना चाहिए, राइट? सो या, and I know you people mean it in a very friendly kidding manner, but it's my job to do that. तो थोड़ा सा ठीक है, चलो। Leaderboards have changed. Oh, how the mighty have fallen. Uh, I feel you, Tishu. I feel you. Sir, please questions करा दो जल्दी जल्दी। तोशिका, मैंने लेट आने बोला था? मैंने बोला था लेट आने क्यों, बताओ? आई पुट दी मैसेजेस इन एडवांस कि भाई 3:30 बजे क्लास है, राइट? उसके बाद भी लेट आए, तो किसकी गलती, मेरी या आपकी? चलो, एंट्री ऑफ वाटर इनटू रूट हेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, भावनाओं में मत बहना यहाँ पे, चूज वाइजली, है ना? चूज वाइजली, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी गलती नहीं है। इट्स अ स्क्रीनशॉट, दैट डजंट मीन इट इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, नाउ सर आप ये क्यों ले आए? अब बेटा यही मिला। ओके, सो द थिंग इज, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट्स अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, नथिंग एल्स, राइट? सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को एक साथ ऑप्शंस में नहीं देना चाहिए था, बट दे गेव इट एनीवे, राइट? तो ठीक है, विल चूज द बेस्ट ऑप्शन विच वाज ऑस्मोसिस। सर प्लीज 50 क्वेश्चंस। बेटा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रन द क्लास टिल 50 और 40, 450 और 455, क्योंकि ना 5 बजे एक और क्लास है, तो इसीलिए तो मैं जितना तक हो सकता है आई विल ट्राई टू रन द क्लास, ठीक है? ओके, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स किस तरह के टिश्यूज हैं? अब देखो यहाँ पे तो एक काटा हुआ भी है, नहीं दोनों काटे हुए हैं, दोनों को टिक करके काटा हुआ है। सर इज दैट अनअकैडमी जैकेट अ गुड? आई एम फीलिंग अ लिटिल कोल्ड, बट इट्स ओके। आई मीन they have also sent t-shirts which you know, so there's t-shirts and then you can wear jackets, but it's cool. Okay, yes, so it's connective tissue and it's fibrous connective tissue, that's the correct answer. सर ये ओके ओके ओके, सर दिल्ली में तो बहुत ठंडी लगी बेटा, है, बट आई एम हैप्पी दैट दिस इज 4 days लेफ्ट, आई एम गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस ठंड। सो देर इज ठंड, बट आई एम कीपिंग वार्म जस्ट बाय द होप दैट आई विल बी एस्केपिंग दिस ठंड वेरी सून। सर इनमें येलो फाइब्रस कौन सा, येलो फाइबर्स कौन सा होता है? येलो फाइबर, बेटा येलो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, वहाँ वो उधर होगा, राइट? देयर इज नो येलो फाइब्रस टिश्यू हियर, राइट? आप ब्राउन फैट बोलते हो, दैट इज ठीक है, बट येलो मैं समझा नहीं, ठीक है? ओके, इसका आंसर इससे इजी नहीं हो सकता, येलो इज इलास्टिन, राइट? ओके, इलास्टिन फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बट आई एम नॉट श्योर यू यूज द टर्म येलो फॉर दैट। ओके, माइट बी, ऐसा मुझे मतलब आई हैव मे बी नॉट come across that usage. There's elastin fibers which form the elastic fibers, they are elastic in nature, so उसका नाम elastin है, elastin, and then this collagen proteins जिसका आपका कोलेजन प्रोटीन्स बने होते हैं, there is one more reticular fibers, 3 तरह का फाइबर्स होता है, बट फाइबरस टिश्यू को फाइबर से कनेक्ट मत करना, क्योंकि हमने कनेक्टिव टिश्यू में क्या कहा है, there is always cells embedded in the matrix. Matrix could be made up of ground substance, the fluidy material or whatever, and then comes the fibers. Fibers can be of 3 types: elastin fibers, collagen fibers, and reticular fibers. Elastin fibers are made up of the protein elastin. Collagen fibers and reticular fibers both are made up of collagen, but आपका जो reticular fibers है वो ज्यादा branched होता है, ठीक है? तो वो fibers हैं बेटा, उनको आप types of tissue में मत लाना, ठीक है? चलो, moving on. Sir, I joined late, so could not get the throne today. कोई बात नहीं बेटा. Okay, okay, okay. Moving on. So I met you 4 times in a day. 4 times कैसे? 3 times, right?
अच्छा हाँ, 4 times, yes, yes, there's special classes as well. Variations are important. सब मैंने अभी गूगल किया, अटेंडेंस आर, वे बेटा, रिया, आई मीन, आर यू टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कलर ऑफ द टेंडर, मतलब वैसा क्या? ये ओके, ठीक है, आई रीड अबाउट इट, पता नहीं, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट कलर, व्हाई दे आर कॉल्ड येलो फाइबर्स, नो आइडिया, बट आई जस्ट गूगल अबाउट इट. Okay. Now, guys, variations are important as they produce. Now, once again, the question is slightly at fault, right? The question is slightly at fault. And why is question slightly at fault? Now, variations, they can give rise to adaptations, elimination, evolution, and it is the variation that are selected, right? Variation ही select भी होता है, right? Now, अब पूछा है कि why are they importance, है ना? पूछा गया है why are they important. If we see कि variations are important because they lead to evolutions, तो evolutions तो deleterious भी हो सकता है ना बेटा, तो फिर वो हमारे लिए कैसा अच्छा हुआ? We only want adaptations, right? हमारे लिए तो adaptations अच्छा है ना, कि adaptations are advantageous, right? And what is evolution? Anything that is advantageous will be selected, the remaining would be deleted, right? So why is variation good for us, or why is variation good for nature? Variation is good for nature because it drives evolution, and nature does not care about कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है. Let me give you an example. Homo neanderthals and Homo sapiens, we lived side by side, we both bred, right? Bred together, but obviously दोनों में थोड़े थोड़े variations थे, right? होमो सेपियंस के वेरिएशंस एडवांटेजियस निकले, होमो निएंडरथल्स के वेरिएशंस डिलेटोरियस निकले, एंड एज अ रिजल्ट होमो निएंडरथल्स आर नो मोर. डज नेचर केयर अबाउट कि होमो सेपियन जिंदा रहा और होमो निएंडरथल मर गया? नो, इट डजंट. ऑल इट वांट्स इज a group of population moving ahead which are better suited with the environment. But what would we care about? Why is it important to us? For us it's important because we want advantages. That means we want adaptation that make us fit for the environment. Now, जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, nobody would have thought about this. Even the questions जो जिन्होंने सेट किया होगा, उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई मैं आंसर इवोल्यूशन ही दूंगा, राइट? बट यहाँ पे knowingly I marked it wrong because you have to understand किसके लिए वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है. नेचर के लिए वेरिएशन डजंट मैटर, वेरिएशन किसका है डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट इज मेकिंग समवन एडवांटेजियस, इट इज मेकिंग द होल population fit. That is what nature is going to care about, or naturally that is what being cared about. हमारे लिए we care only when it's advantageous. If it's deleterious, we want to save ourselves, right? Well, that is why you have to learn to play under pressure, right? स्पोर्ट्स में बोलते हैं ना, you have to learn to play under pressure. तो this is me teaching you to play under pressure. ठीक है, कि जब जब ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आएंगे, तो फिर इन मिसलीडिंग स्टेटमेंट से अपने आप को कैसे बचाना है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. बट दैट्स अ गुड आइडिया ऋषभ, अगले बार मैं हर क्वेश्चन में टिक करके लाऊंगा. मे बी दैट वुड हेल्प मी. अगले बार I'll do this intentionally maybe, and that can help. Okay, so option 3 is clear cut. यहाँ पे कस्क्यूटा पैरासाइट है, दूसरे प्लांट्स को से न्यूट्रिशन सक करके जिंदा रहता है. नो सिंपैथी फॉर दैट गाय. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, राइट? और इसमें जिसने गलती की, इसका मतलब वो समोसे खा रहा है बैठ के, पक्का. ओके, देखो, वाओ, देखो भाई साहब, नेफ्रॉन. मुझे लग रहा था कि वो न्यूरॉन जरूर करेगा, बट किसी ने नहीं किया, विच इज गुड, आई एम हैप्पी. ओके, लीडर बोर्ड में टफ कंपटीशन चलते हुए. वाओ, 3 people are in the same thousands. That is good.
चलो क्वेश्चन नंबर 37। सर ये लेवल के क्वेश्चन चाहिए मैथ्स पे। ओके, चलो लैटरल वेंट्रिकल्स कहाँ हैं? कोई भी समोसा नहीं खा रहा था, अफसोस, है ना, अफसोस। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल, बेटा जी देखो, ओपी गेमर्स, अगर सारे बच्चे चाहें तो सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट में, है ना, कोई प्रतिबंध थोड़ी ना बेटा। बट द रीजन दैट देर इज मेंटीज, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले ना अपने आप को सीख टेस्ट करने का, राइट? ओके, तो लेट अस ट्राई टू आंसर हियर, व्हाई टू आंसर इन द चैट बॉक्स, राइट? ये ऑप्शन नहीं होता तो चैट बॉक्स में आंसर करते। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। ओके, सो चल इस क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन करता हूँ बेटा रितेश, ठीक है? आई अज्यूम कि सबको पता होगा, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अच्छा सॉरी, भूल गया, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क्ड था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बताता हूँ। ओके, सो menopause is easy now. So सबसे पहले you have the cerebrum, 81% of your brain. Lateral ventricles or any ventricle, there are total 4 ventricles that are fluid filled cavities inside your brain. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये आपका सेरिब्रम का दो हिस्सा है, दोनों तरफ एक एक लैटरल वेंट्रिकल जाएगा, दोनों डायनसेफ्लॉन के हिस्से में मिलेगा। दे विल कम टू अ थर्ड वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल फॉर्म होगा, राइट? एंड फाइनली एक फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म होता है अराउंड पॉन्स और मेडला के ठीक पीछे, ठीक है? सो यू हैव द लैटरल वेंट्रिकल्स, देन द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, और यही वेंट्रिकल नीचे कंटिन्यू होती है टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल कनाल। तो वी कॉल इट सेंट्रल कनाल, जिसमें सेम सीएसएफ फ्लो हो रहा है, ठीक है? Yesterday I lost my ice cream at 8 वाला सेशन, I keep it on my table, it melt. अजीत, my sincerest condolences, condolences, yeah. Bye sir. Okay, okay, your time is up. Better, we'll be closing up in 2 to 3 minutes, you can stay. Okay, we'll be closing up in 2 to 3 minutes. Exchange of gases in human occurs in dash. Yes, they occur in alveoli. Okay, so someone has made it to their mission, that they would out all the answers. Sir, are these even questions? अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके गाइज, ये क्वेश्चंस जो अभी आ रहे हैं ना, ये हरियाणा के नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चंस हरियाणा के नहीं है। लेट मी जस्ट वर्क पास्ट टू देम, ठीक है? ओके, ऐसा करते हैं, लेट्स लेट्स रैप। आई थिंक हमारा 2 साल का क्वेश्चन बच गया, ये क्वेश्चन हरियाणा का नहीं है, ठीक है? डोंट वरी, अभी 1920 और 2021 बचा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, सो क्वेश्चन 42 to 51, वी आर लेफ्ट विथ 1920 एंड 2021। ऐसा करते हैं, लेट्स फोल्ड द सेशन फॉर राइट नाउ, विल रीस्टार्ट दिस सेशन एनी डे, टुमारो और डे आफ्टर, ठीक है? जब भी नेक्स्ट एनटीएससी का सेशन होगा उसके साथ वो कंटिन्यू करेंगे। सर डू यू वांट टू नो हु इज हा हा हा? या आई एम क्यूरियस हु इज हा हा हा? सब नाम क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों कह रहे कि कोई? बिकॉज बेटा, आप अगर अभी कक्षा में हो तो आई एम अ बीटेक इन बायोटेक हु नोज व्हाट साइकोलॉजी इज एंड नोज हाउ टू अप्लाई दैट, ठीक है? राइट? सो डू यू थिंक मैं टीचर ऐसे बस बैठे बैठे बन गया? नहीं ना? तो फिर आपको पता है कि, आपको लगता है कि आपको, डू यू रियली थिंक यू कैन आउटस्मार्ट मी? डू यू थिंक इतना इजी है? वो पुराना डायलॉग है ना, जिस कक्षा में तुम पढ़ रहे हो हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, राइट? दैट डायलॉग इज वेरी मच एप्लीकेबल। ओके, सो गाइज डोंट डू स्टफ लाइक दैट, मतलब फोकस ऑन द डीड, है ना? फोकस ऑन पढ़ाई, दैट इज व्हाट गोइंग टू हेल्प यू पीपल, ठीक है? चलो, ओके guys, I know there's no leaderboard here right now, so फायदा नहीं है। So I already told you about premium batches at for foundation grade 10 and golden batches for class 9, right? And thank you so much. So you're praising yourself. Obviously I'm praising myself. Shakespeare, right? Shakespeare used to do that. Okay.
Yes. So do remember to like the video and subscribe to the channel and click on the bell icon, because that is how you will get all the notifications. Thank you so much, guys, and thank you. Uh, Now there's 8 p.m. class on NEET 2024. Please make sure that you're there, and we'll go it from there. Okay. Bye. Bye, guys. Middle. No. 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 Okay. Bye, guys. Thank you so much. Take care. See ya. Okay. Okay. It's okay. Done.